Hello students, today we will discuss all the questions of exercise 6.1 which is based on the concept of rate of change of quantities. In this exercise, we will discuss the rate of change of various quantities. Suppose we studied dy by dx, it means dy by dx means rate of change of y with respect to x. So first of all, see question number 1. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3. What we have to find out? Rate of change of area. It means we have to find out the derivative of a with respect to its radius, with respect to r. This thing we have to find out when r is equal to 3 centimeter. We know that area of a circle is pi r square and we want to find out dA upon dr. dA upon dr, differentiate it with respect to r. Pi is constant, derivative of r square will be 2r, so it will be 2 pi r, and we have to find dA upon dr कब? When r is equal to 3. So put the value of r equal to 3 here. 2 into pi into 3, it will be 6 pi. So this is the answer. Now question number 2. In question number 2, the statement is the volume of the cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter? Read the statement carefully. The volume of the cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. What is given? Rate of change of volume, and it is given centimeter cube per second. Per second means it is with respect to time. So what is given to us? dV upon dt is equal to 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? We have to find the rate of change of surface area. What we have to find out? ds upon dt. Kab? When the length of the edge is 12 centimeter. When edge is 12, let us assume that edge of cube is x centimeter, and here we have to find the rate of change of surface area when x is equal to 12 centimeter. 12 centimeter. So what is given? dV upon dt. What is the formula for the volume of a cube? Volume of cube is x cube. dV upon dt is given to us, so we will find dV by dt from this formula. x cube का डेरिवेटिव करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू फिर x का करेंगे फाइनली विद रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी dx अपॉन dt, एंड वी नो दैट dv by dt is given to be 8. So put the value of this, we will get 8 equal to 3x स्क्वेयर इंटू dx अपॉन dt, और यहाँ से हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वेयर, और जो अब इसको हम यूज़ करेंगे जो हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट ds अपॉन dt. ये हमें निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6x स्क्वेयर. तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 6x स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x, और हमें विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है तो इंटू dx अपॉन dt. और ये कब निकालना था? ds अपॉन dt जब x जो था वो 12 था. तो यहाँ पर आप यहाँ पे 12 x की वैल्यूज़ रख दीजिए. x की वैल्यू 12 गिवन थी और dx अपॉन dt हमने ऊपर निकाला था 8 अपॉन 3x स्क्वेयर. 3x स्क्वेयर, तो x की फिर से वही 12 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 12 स्क्वेयर. 12 स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ds अपॉन dt आ जाएगा 8/3. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज़ 8/3. एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वेयर. इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड. Now we will start third question. See the statement.
The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm. Statement ध्यान से देखो पहले. The radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. क्या given है? dr upon dt. Per second means with respect to time, radius means dr. It is given to be 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing. हमें निकालना है rate of change of area with respect to time. ये हमें निकालना है कब? When r is equal to 10 cm. बात किसकी हो रही है? सर्कल की हो रही है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर. तो डी ए अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r. फिर फाइनली क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है तो डी आर अपॉन डी टी. अब इसमें r की वैल्यू भी पुट कर दीजिए और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए. 2 पाई बाहर आ जाएगा, r की वैल्यू 10 गिवन है और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3 गिवन है. तो 3 टू ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा हमारे पास 60 पाई. Now let us start fourth question. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 cm long? ध्यान से देखो, edge of a variable cube is increasing. Rate of change of edge दे रखा है with respect to time 3. So first of all let us assume that edge of cube. Let edge of cube is x centimeter. And what is given here? dx upon dt जो है वो 3 cm per second हमें दे रखा है. How fast is the volume of the cube increasing? We have to find the rate of change of volume with respect to time. ये हमें निकालना है कब? when edge यानी कि x की वैल्यू जो है वो 10 cm है. तो क्यूब की बात हो रही है. क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? x क्यूब. इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी वी अपॉन डी टी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. अब यहाँ पर x की वैल्यू 10 और डी एक्स बाई डी टी जो हमें 3 गिवन था वो पुट कर देंगे. तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज़ ऑल्सो 3. सो इट विल बी 3 3 ज़ा 9. 9 इंटू 100 900. वॉल्यूम की बात हो रही थी तो सेंटीमीटर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम था तो पर सेकेंड. Now we will start question number 5. पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 5 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? हमें पता है कि जैसे ही हम किसी क्वाइट लेक में कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो उसमें सर्कुलर वेव्स मूव करती हैं. ये वही दे रखा है. तो क्वाइट लेक में जब कोई स्टोन ड्रॉप किया जाता है तो सर्कुलर वेव्स जो होते हैं उसका रेडियस जो सर्कल का वो इंक्रीज़ हो रहा है 5 cm पर सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, मान लेते हैं सर्कल का रेडियस जो है वो एक्स आर मान लेते हैं, r सेंटीमीटर है. तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ही दे रखा है डी आर अपॉन डी टी. इट इज़ 5 cm पर सेकेंड. यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा 5 cm 1 cm इट मीन्स ये रेडियस ही है. At the instant when the radius is 8, how fast is the enclosed area? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर. और क्या निकालना है? डी ए अपॉन डी टी निकालना है कब? when r is equal to 8 cm. इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा 2 पाई आर, आर स्क्वायर का हो गया 2r, पाई कॉन्स्टेंट है, इंटू डी आर अपॉन डी टी. पुट द वैल्यूज़. 2 पाई आर की वैल्यू 8 और डी आर अपॉन डी टी हमें 5 दिया हुआ था क्वेश्चन में. तो 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80. तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया 80 पाई. Now see question number 6. The radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 cm per second. What is the rate of increase of its circumference? What is given here? Here radius का रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है. इट मीन्स डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है एंड इट इज़ 0.7 cm पर सेकेंड. व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस? वी हैव टू फाइंड डी सी अपॉन डी टी, ये निकालना है. तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई आर एंड वी हैव टू फाइंड
डी सी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 पाई आर का डेरिवेटिव, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे और फिर आर को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो आर का तो हो गया 1 और इनटू हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7, ये आ जाएगा 1.4 पाई रेट ऑफ चेंज ऑफ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर का विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया डी आर अपॉन डी टी, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई इंटू 0.7, तो डी सी अपॉन डी टी इज़ 1.4 इंटू पाई। दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1.4 पाई। Now see question number 7. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Decreasing means negative. And the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is 8 and y is 6, find the rate of change of perimeter and area. दो पार्ट है, पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, सेकंड पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो देखो बेटा, इसमें हमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की x, तो लेंथ तो हो गई इसमें x और ब्रेड्थ हो गई y, और रेट ऑफ चेंज ऑफ x लेंथ डी एक्स अपॉन डी टी वो डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ का मतलब इट इज़ -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ डी वाई अपॉन डी टी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज 6, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वी वांट टू फाइंड डी पी अपॉन डी टी, तो डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा 2 इंटू, डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। पुट द वैल्यूज ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, इट इज़ -5 एंड डी वाई अपॉन डी टी इज़ 4, इट विल बी 2 इंटू -1, so it is -2 centimeter per minute. It means the perimeter is, rate of change of perimeter is also negative, तो rate of change of perimeter is 2 centimeter per minute, यानी कि perimeter is decreasing because of this negative sign at the rate of 2 centimeter per minute. Similarly, we can do the second part for the area. We will take the area of the circle, sorry, area of rectangle, length into breadth, x into y. We want to find out dA upon dt. Here it is the product of two functions, so we will use the product rule, x into dy upon dt plus y into dx upon dt. Put the value of x, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, x was 8 and y was 6, x is 8 and y is 6, it was given. Put the value of x 8, dy upon dt was 4, y was 6, dx upon dt was -5. Solve it, 8 4 are 32, -5 6 are 30. It is 2 centimeter, area है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पर मिनट. दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 centimeter square पर मिनट. Now see the 8th question. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. 900 cubic centimeter, इसी से हमें आइडिया लगेगा कि ये dV अपॉन dt है, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होती है, पर सेकेंड मीन्स रेट ऑफ चेंज. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 centimeter. वी हैव टू फाइंड dr अपॉन dt व्हेन r is 15. So what is given, we will write here. It is given that dV upon dt is 900 centimeter cube per second, and we want to find out dr upon dt when r is 15. बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में, बैलून की, और वो भी स्फेरिकल की. स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब. डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt. 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² इंटू dr अपॉन dt. वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. dv अपॉन dt हमें 900 गिवन है, 4 पाई आर की वैल्यू 15 गिवन है, इट इज़ 15 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt. तो इससे हमारे पास dr अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 900, और ये सारा इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 पाई इंटू 15 इंटू 15. इसको हम काट देंगे.
5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0, 3 6 ज़ा 18 60, 4 से 15, 15 से 15 कट गया, 1/पाई। हाँ, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, बस डिनोमिनेटर में पाई बच गया, तो ये हमारा आ गया dr/dt इज़ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर। तो बच्चों 8 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे इस वीडियो में। इससे आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, तब तक आप ये करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के।